اصل میں کفایت اللہ سنابلی موجودہ دور میں نیم رافضیت کے لیے وہ زہر قاتل عنصر ہے کہ کفایت اللہ سنابلی نام آ جائے نیم رافضیت تو یوں ہی بھرا جاتی ہے بندے، اور کچھ دیر کفایت اللہ سنابلی کا ذکر چلے تو مکمل رافضیت ہو جاتی ہے۔ کفایت اللہ سنابلی اس کیمیکل کا نام ہے کہ اس کو جیسے ڈالو گے نا نیم رافضیت فوراً اوپر آ جائے گی چیز میں سے کہ یہ جو نا آدمی رافضی ہے۔ ہر رافضی کتے کی طرح بھونکتا ہوا نظر آئے گا کفایت اللہ سنابلی۔ سن رہا تھا ایک گمراہ ظالم تھا، اس نے ایک لمبی چوڑی بکواس کی ہے، اس نے کبھی میں بتانے والا ہوں کہ اہل حدیث جو ہے نا یہ ناسبی ہوتے ہیں، یہ ناسبی ہیں اہل حدیث، یہ ناسبی ہیں اہل حدیث۔ مولا کیا نام ہے صلاح الدین یوسف صاحب کو اس نے ذکر کیا، یہ جناب اچھا سنابلی صاحب کا کیا، مولا کیا نام ہے سنابلی صاحب جو کفایت اللہ سنابلی صاحب، کیوں جی وہ جی اہل حدیثوں کے وہ طاہر القادری ہیں، کیا جی وہ جس طرح طاہر القادری بگڑا ہوا یہ بھی بگڑا ہوا ہے جی۔ ظالموں تمہیں شرم ہی آتی ہے، ظالموں تمہیں شرم ہی آتی ہے، تم سے کہیں زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے کروڑواں حصہ زیادہ سیدنا علی اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ جو اہل بیت سے مطلب ناسبی ہوتا ہے بھائی، یزید کے حمایت میں کتاب لکھ دی، کیا یہ ناسبیت ہوتی ہے؟ یزید کے حمایت میں کتاب لکھ دی، کیا یہ ناسبیت ہوتی ہے؟ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں اگر کوئی اجتہاداً یہ بات کہہ دیتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا حسین اور یزید کے حوالے سے کوئی بات کر دیتا ہے اجتہاداً کہ کہہ دیتا ہے کہ سیدنا حسین کی یہ اجتہادی خطا ہے، پھر بھی وہ ناسبی نہیں جی آپ لاسٹ ٹائم میرے کو کیا بولے تھے، آپ کا مسئلہ نمبر 26 دیکھ کے بولے تھے میرے کو آدھے گھنٹے کا، جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ تھا کہ وہ سب نہیں کرنے کے یعنی برا بھلا نہیں کرنے کا حکم دے رہے تھے، وہ آپ وہ جو حدیث تھی صحیح مسلم کی 6220 والی، تو معذرت کے ساتھ شیخ صاحب آپ وہ حدیث میں بہت تعریف کرے، وہ جو حدیث جی صحیح مسلم کی 6220 ہے اس میں واضح لکھے ہوا ہے ہمارا معاویہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا۔ ہمارا معاویہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہمارا معاویہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو؟ پھر کیا پڑھیں گے ہم؟ ہمارا کیوں نہیں پڑھیں گے اس کو؟ کیونکہ اب جب ترجمے میں دیکھیں گے، سنیے ترجمے میں عربی بات کیجیے، آپ نے اس کو ہمارا کیوں پڑھا؟ آپ نے اس کو کیونکہ اس میں ہے ہمارا کیوں پڑھا؟ میں اس لیے پڑھا کیونکہ میں جب جی نہیں ہمارا آپ اسے ہمارا کیوں پڑھ رہے ہیں کہ امیر معاویہ نے حکم دیا؟ کیونکہ جب میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو مجھے واضح ہو جا رہا نا شیخ۔ ترجمے کی بات ہی مت کیجیے، کوئی پھر کس کی بات کروں میں؟ کیا کوئی قاعدہ قانون ہو تو بتائیے، ترجمے کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے تو یہ مسئلہ ہوگا نا۔ ترجمہ میں اس کی حدیث آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں نا۔ دیکھیے یہی حدیث سنن ترمذی میں بھی ہے، اس میں کسی نے ترجمہ کیا کہ امیر بنایا، تو ترجمہ تو وہی ہے، ترجمہ تو ہمارا بھی کیا لوگوں نے۔ ہاں تو شیخ صاحب آگے واضح ہو جا رہی نا، حدیث واضح ہو جا رہی نا کہ ہمارا معاویہ، سنیے نا، سنیے پہلے آپ سنیے، پہلے یہ کریکٹ کیجئے کہ آپ نے امرا کا ترجمہ، امرا آپ نے کہا کہ جو ہے حکم دیا، تو اس کی دلیل چاہیے۔ ترجمہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے دلیل میں ترجمہ پیش کیا، ترجمہ تو اردو میں وہ بھی ہے، امیر بنایا، دونوں ترجمہ ہے، اس سے فیصلہ ہوگا۔ کسی نے ترجمہ کیا امیر بنایا، کسی نے ترجمہ کیا کہ حکم دیا، ترجمہ میں دونوں موجود ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی میرے کو بات کرنے نہیں دے رہے تھے آپ۔ اس کا ثبوت دیجئے، کوئی سیاق سے کسی بھی طرح کا کوئی ثبوت دیجئے کہ آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں کہ حکم دیا، یہ کس بنیاد پر ترجمہ کر رہے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، آپ اس کا عربی کی عبارت اور اردو عبارت میرے سامنے ڈسپلے کریے، یا پھر میں کرتا ہوں، دونوں بھی ڈسپلے کر دیتا ہوں۔ اردو نہیں دیکھنا ہم کو، اردو نہیں دیکھنا ہم کو جو بھی ڈیسیزن، اردو سے نہیں ڈیسیزن لیں گے ہم، اردو میں نے بتا دیا دونوں ہے، اردو کوئی دلیل۔ شیخ سنیے، بخاری کا ہی اردو اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں نا۔ ارے ترجمہ کیوں دیکھیں گے؟ حدیث آگے جا کے واضح ہو جاتی ہے نا۔ ترجمہ دلیل نہیں معاویہ ہے، نے حکم دیا، سعد نے انکار کیا، معاویہ نے حکم دیا، سعد نے انکار کیا۔ نہیں ارے شیخ اگر حکم دیا غلط ترجمہ، امرا ہے، وہ امرا نہیں، امرا ہے، امیر بنایا۔ تحمل تو پھر کس نے انکار کیا؟ انکار جب حکم دیا تو تبھی تو انکار آئے گا نا۔ میں دلیل دیتا ہوں نا، میں امرا پڑھتا ہوں تو میں اس کی، میرے پاس کی دلیل ہے، آپ دلیل دیجئے۔ آپ نے امرا پڑھا کہ حکم دیا،
मैंने आपसे दलील पूछा तो आप कह रहे हैं कि तर्जुमे में तो अमीर बनाया दोनों है। अब इन दोनों में से सही क्या है उसकी दलील चाहिए। तर्जुमा दोनों मौजूद है किताबों में, अमीर बनाया भी तर्जुमा है, हुक्म दिया भी तर्जुमा, दोनों में से सही क्या है, आपके पास क्या दलील है? आपके पास क्या है कि अम्मारा जो है बोल के, अम्मारा है बोल के, वो मेरे पास दलील, जो आपने को तिरमिजी की हदीस हाँ तिरमिजी की हदीस बताएंगे आपने को। सुनिए जी मैं उसकी मैं आपको बोल रहा हूँ, उसमें मैंने उसमें दिया मेरे लेक्चर, आपने सुना नहीं मेरा लेक्चर? अगर आप ये बात कर रहे हैं ना, मैंने क्या उसमें तिरमिजी की हदीस नहीं बताई है? एक बात, इसका मतलब बगैर सुने आप चले आए। आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं डिस्प्ले कीजिए, मैंने डिस्प्ले नहीं किया उस लेक्चर में। मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि तिरमिजी की रवायत 5 बार देखा हूं मैं। नहीं आप बताइए। 5 बार देखा मैं, और मैं सुना भी आपका लेक्चर, आप सुनिए तो सही। मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको कुल एक 3-4 हदीस बता दे रहा हूँ, उसमें पूरे क्लियर हो जाने वाला है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि तिरमिजी की हदीस मैंने उसमें डिस्प्ले किया कि नहीं किया, मेरे लेक्चर में है कि नहीं है? उसका तर्जुमा मैंने दिखाया कि नहीं दिखाया? हाँ है भाई। तो क्या करेंगे? तिरमिजी को छोड़िए ना, मुस्लिम हाँ? भाई हमारे पास सही है, 2 कुतुब सही है, बुखारी मुस्लिम, उसमें क्या तर्जुमा है? तर्जुमा नहीं दलील है, मैंने कह दिया ना। तर्जुमा आपका प्रॉब्लम है, हमारे मेरा नहीं है। मैंने कह दिया कि तर्जुमा दोनों मौजूद है, तर्जुमा आपकी दलील है ना, हमारी दलील। सुनिए तो सही, आगे आप छोड़ दीजिए अमरा छोड़ दीजिए, आगे चलिए बात। मैं आगे आपको बात बता रहा हूँ कि जब हजरत मुआविया ने हुक्म दिया, हम आगे चलते हैं, सुनो हम आगे चलते हैं, पहले ये तय हो जाए, हम इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए उसमें ये कह रहे थे कि अमरा है, हुक्म दिया का आपने कोई सबूत नहीं दिया, वो अमरा है। और अमरा हम क्यों कह रहे हैं? इन्होंने अपने तर्जुमे की कोई दलील नहीं दिया, मैं दलील देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम अमरा अगर कहेंगे तो अमरा हुक्म दिया, किस चीज का हुक्म दिया? जब भी क्या होता है कि अमरा हुक्म दिया, तो अमरा फेल के बाद जो है, हुक्म के बाद जो है मफूल भी आता है, दोनों साथ में होता है। यहाँ पे मफूल नहीं है, यहाँ पे ये नहीं कि किस चीज का हुक्म दिया। अब यहाँ पे जब अमरा कहते हैं अमीर बनाया, तो ये काफी है, यानी अमरा साधन ये काफी है, यानी जुमला कंप्लीट है। लेकिन अमरा पढ़ते हैं तो जुमला कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं है। तो जो कि जुमला कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए उसको अमरा पढ़ेंगे, अमरा नहीं पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, भाई साहब कहते हैं आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है बताइए शेख, थोड़ा और अच्छे से क्लियर करिए इसको। ये शुभा ना क्लियर नहीं हुआ अच्छे से, थोड़ा और डिटेल से क्लियर करिए इसको। यही की जो कभी कभी फेल जो है वो मफूल के साथ आता है, कभी लाजिम होता है, वो उसको क्लियर करिए शेख और अच्छे से। और वो तिरमिजी की जो रिवायत है वो भी है शेख तिरमिजी वाली रिवायत में अम्मरा का लफ्ज है बाकायदा, उसका तर्जमा भी लोगों ने वही किया। हाँ मैंने लेक्चर में उसको बताया भी है, तिरमिजी की रिवायत बताया भी, पता नहीं साहब सुने कि नहीं सुने उसको। तो देखिए अमरा 105 बार सुना फिर। तो फेल देखिए 2 तरह से आता है, एक होता है ना फेल, तो उसके बाद फेल जुमला कंप्लीट हो जाता है, यानी फेल के बाद एक मफूल आता है, और कभी कभी 2 आता है कि हुक्म दिया ये करें, दोनों आता है। तो ये जो अमरा आप पढ़ेंगे, अमरा अगर पढ़ेंगे तो वहां पे जुमला कंप्लीट हो जाता है कि अमरा साधन को अमीर बनाया, बिल्कुल से कंप्लीट है जुमला। लेकिन जब आप ये पढ़ते हैं कि अमरा हुक्म दिया, तो उसी के साथ फौरन आना चाहिए कि किस चीज का हुक्म दिया, लेकिन वहां पे उस जुमले में वो चीज नहीं आ रही है। इसका ये सियाक दलील है, ये जुमला दलील है कि यहाँ पे अमरा नहीं है बल्कि अमरा है। ठीक है, ये जो पूरा अब इसको वही समझ सकता है जिसको अभी आती है। ये जो अमरा जो है उसका 2 मफूल होना चाहिए। हुक्म दिया तो किसको हुक्म दिया और किस बात का हुक्म दिया, 2 मफूल आते हैं जब अमर आता है, और अमरा के लिए एक मफूल होना काफी है। अब जब आप कहते हैं अमरा साधन, तो इसमें एक ही मफूल आया, तो फिर सवाल ये पैदा होता है दूसरा मफूल कहाँ गया कि किसका हुक्म दिया, वो तो आया ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसको अमरा पढ़ लेते हैं तो बात समझ में आती है कि साद को अमीर बनाया, उसके लिए फिर एक और मफूल की जरूरत नहीं होती है। तो लुग़वी कायदे के एतबार से अमरा जो है वो ज्यादा सही है जो शेख फरमा रहे हैं। और फिर तिरमिजी की रिवायत फिर तायद भी हो जाती है इसकी कि तिरमिजी में अमरा का लफ्ज भी है। आप तर्जमा बोल रहे हैं तो तिरमिजी में अमरा का तर्जमा भी है कि क्या साद को अमीर बनाया। बारकल्लाह जी। व्यूअर्स को बता दूं यहाँ पे मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल के डिफेंस में एक किफायत जवाब दे रहे हैं, और जो इल्जाम लगाया गया है उनके खिलाफ, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ, जो बाज लोग आज है जो सहाबा इकराम को टारगेट करते हैं, और उसमें मुआविया टारगेट करना मकसूद नहीं है, टारगेट करना मकसूद नहीं है, टारगेट करना मकसूद नहीं है। शेख बात सुनिए, पहले आगे बढ़िए हदीस में आगे बढ़ते हैं। पहली बात क्लियर होगी, उसमें हुक्म देने की कोई बात नहीं हदीस में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बताइए, क्या आगे जी। तो हजरत मुआविया ने साद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर हुक्म दिया। हेलो, आ रही मेरी आवाज?
क्या बुला कर क्या जी। हुक्म दिया, कहा उसमें एक देखिए ये बात खत्म हो गई। नहीं, अरे हुक्म नहीं- आप मेरी बात सुन रहे भी नहीं। आगे बढ़ो। मेरी बात सुनिए, आपने एक तरफ कहा कि उसको छोड़ के आगे बढ़ते, फिर आप रिपीट कर रहे हैं। हुक्म दिया आप साबित नहीं कर सके की रवायत में, आप ये अरे हुक्म दिया ये साबित नहीं कर सके, फिर कहते हैं अब आगे बढ़ो। आगे क्या, हुक्म देने वाली बात नहीं, उसमें अमीर बनाने की बात है। अरे अब आगे बढ़िए, हाँ, आगे तो क्या है? अमीर बनाए तो इनकार थोड़ी करेंगे। वो हुक्म दिया तभी तो इनकार करे ना, हुक्म अल्लाह दिया के तभी बंदे, तो उसमें इनकार करे। कहाँ हुक्म की बात, उसमें हुक्म देने की बात क्या, उसमें तो सवाल है। आगे जो है वो सवाल है, आगे कोई हुक्म है ही नहीं, आगे महज ठीक है, एक आप पढ़ सवाल है। दीजिए हदीस, आप पढ़ दीजिए, मैं ना पढ़ता हूँ, आप पढ़ दीजिए हदीस। मैं क्या पढ़ है? देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ, सुनो, पढ़िए। मैं पढ़ देता हूँ हदीस। हदीस ये है कि अम्मरा मुआवियतो इब्न अबी सुफियान सादन, कि मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने साद रजी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर बनाया, खत्म। आगे फकाल, अमीर बनाया, फकाल, अब ये दूसरा सेंटेंस, दूसरा जुमला शुरू रहा, अमीर बनाया तो कहा कि मा मना अका अन तस्बा अबत तुराब, कहा कि आपको क्या चीज रोकती है कि अबू तुराब पर सब करें, अबू तुराब पर सब करें, इससे क्या चीज रोकती है। अब सब का मैंने अपने लेक्चर में डिटेल से बताया कि उसका कई माना होता है। मामूली इख्तिलाफ, ओपिनियन अलग रखना, ये भी सबका माना होता है। सही बुखारी की हदीस मैंने पेश की है कि सही बुखारी में एक मुसलमान सहाबी और एक यहूदी में इख्तिलाफ हो गया। इख्तिलाफ किस बात पर था कि नबी अफजल है या मूसा अलैहिस्सलाम अफजल है। इस इख्तिलाफ को उसमें मेरी बात सुनिए, एक मिनट, पहले सुनिए ना मेरी हाँ बात। मैं सुन रहा हूँ, मेरी बात मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, तहम्मुल से सुन रहा हूँ मैं बीच में मत बोलिए आप। अभी आपने कहा आगे आपने कहा कि आपने खुद मुझसे कहा कि आप ही पढ़ के बता दीजिए, तो आपके कहने से मैं पढ़ के बता रहा हूँ। इस पर जो आपका ऑब्जेक्शन होगा आप बाद में बताइएगा। तो सही मुस्लिम की इस रवायत में क्या है कि आप सब क्यों नहीं करते। अब सब का मतलब गाली देना नहीं होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि मैंने अगर किसी मुसलमान पर सब किया, अल्लाह ताला उसे मगफिरत बना दे। तो क्या ये तवक्को रखते हैं कि माज़अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को गाली दी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में सब का इस्तेमाल किया। और ऐसे सहाबी ने और एक यहूदी से झगड़ा हुआ, तो झगड़ा इख्तलाफ इस बात पर था कि कौन अफजल है। तो दोनों, वो कहते थे मूसा अलैहिस्सलाम अफजल है, यहूदी कहता था मूसा अलैहिस्सलाम अफजल है, मुसलमान का कहना था, मुस्लिम सहाबी का कहना था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल है। इस अफजलियत को लेकर जो इख्तलाफ हुआ, इसको हदीस में सब से ताबीर किया गया है। अब इसका मतलब कोई गाली थोड़ी है कि ये मुसलमान और ये दोनों आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे थे, नहीं, इख्तलाफ कर रहे थे। तो सब का माना क्या होता है, इख्तलाफ करना होता है। तो यहां पे अगर कोई तर्जुमा कहता है गाली देना, वो गलत तर्जुमा करता है, वो बिल्कुल, क्योंकि इसके गाली देना तर्जुमा करने के लिए अलग से आपके पास कोई वाज़े दलील चाहिए। जब वाज़े दलील नहीं है तो दीगर रवायत में क्या है, पूरी दुनिया जानती है कि मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु और अली रज़ी अल्लाह में इख्तलाफ था। तो इसी इख्तलाफ के बारे में वो सवाल कर रहे हैं। ये यानी साद रजी अल्लाह तआला से ये पूछ रहे हैं कि आप अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की पॉलिसियों से इख्तलाफ क्यों नहीं करते। सिर्फ ये मसला। और यही इमाम नबी रहमतुल्लाह ने जो सही मुस्लिम की, ये सही मुस्लिम है, ऐसा नहीं कि मैं कोई पहली बार कह रहा हूं, बल्कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने बाकायदा यही लिखा है कि इससे मुराद ये है कि वो जो इख्तलाफ था उस इख्तलाफ के बारे में पूछा। और इमाम मुस्लिम ही नहीं बल्कि और भी सही मुस्लिम के कई शारीह ने ये माना दिया। आप तर्जमे के पीछे जा रहे हैं। इमाम नबी लिख रहे हैं कि मा मना का अन तुखत्तियहु फी राई व इज्तिहादिही व तुज़हिरा लिन्नास हुस्न राइना व इज्तिहादिना व अन्नहु अख्ता। इमाम नबी रहमतुल्लाह इस जुमले की तशरीह कर रहे हैं कि आपको क्या चीज रोकती है कि आप अली रज़ी अल्लाह की राय को, उनके इज्तिहाद को गलत करार दें और हमारे इज्तिहाद को सही करार दें। ये इमाम नबी रहमतुल्लाह की तशरीह है कि ये जो सब का मतलब ले रहे हैं, ये मफहूम बता रहे हैं कि इसका मफहूम सिर्फ ये पूछना है कि भाई आपने हमें सही क्यों नहीं समझा, आपने मुआविया रज़ी अल्लाह को गलत क्यों नहीं कहा। तो ये जो इख्तलाफ था उसके बारे में साद रजी अल्लाह तआला से सवाल किया कि आपने भाई हमें सही क्यों नहीं समझा, उन्हें गलत क्यों नहीं समझा। और इसके पीछे जो पूरा बैकग्राउंड है सवाल करने का, वो ये कि साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये इस इख्तलाफ में जो मुआविया रजी अल्लाह अन्हु और अली रज़ी अल्लाह के बीच में इख्तलाफ हुआ, इनमें से किसी के साथ नहीं थे वो। ना उन्होंने अली रज़ी अल्लाह का साथ दिया लड़ाई में, ना उन्होंने मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को साथ दिया। और ये जो दोनों ग्रुप है मुआविया और अली का, इन दोनों का मामला ये था कि जिन लोगों ने इनका साथ नहीं दिया था
उनमें से कई लोग जब इनसे टकराते थे, चाहे मुआविया रजी अल्लाह तआला से, चाहे अली रजी से, तो ये दोनों ये सवाल करते थे कि आपने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। चुनांचे यहाँ रिवायत क्या कहती है कि मुआविया सवाल कर रहे हैं साद रजी अल्लाह तआला से, आपने हमारा साथ क्यों नहीं दिया, आपने इख्तलाफ क्यों नहीं किया, आपने हमें सही क्यों नहीं समझा। और उधर सही बुखारी की रिवायत है कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब उसामा बिन ज़ैद जो अहले बैत में से हैं वो अपने किसी आदमी को भेजते हैं तो कहते तुम जाओगे तो अली रजी ये कहेंगे कि उसामा ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। तो अगर वो ऐसा पूछेंगे तो जवाब दे देना कि भाई अगर तुम शेर के जबड़े में हो तो वहां भी मैं तुम्हारा साथ देने के लिए आ जाऊंगा, लेकिन ये जो मुसलमानों का आपसी इख्तलाफ, आपसी लड़ाई है, इसमें मैं आपका साथ नहीं दूंगा। तो ये उसका पसे मंजर है। ये चाहे मुआविया हो चाहे अली, ये दोनों अगर ऐसे इन दोनों से कोई ऐसा अहम शख्सियत टकराती थी तो उससे ये सवाल करते थे कि आपने हमारा साथ क्यों नहीं दिया, आपने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। बल्कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है कि एक और सहाबी हसन रज़ियल्लाहु के पास आते हैं और कहते हैं कि अली रज़ियल्लाहु से मेरी सिफारिश करते हैं, मुझसे नाराज ना हो जाएं क्योंकि मैं लड़ाई में इनका साथ नहीं दिया, तो अभी वो मुझसे पूछेंगे कि हमारा साथ क्यों नहीं दिया। तो ये दोनों के साथ मामला है। यानी जो सवाल मुआविया रजी अल्लाह तआला ने यहां उठाया और पूछा, यही सवाल अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी करते थे कि आपने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। तो यहां सब जो है वो गाली देने के माने में नहीं है, इख्तिलाफ राय के माने में कि आपने हमें जो है उनको अली रज़ा को गलत क्यों नहीं आपने कहा। तो इसका जवाब दिया साद रज़ी अल्लाह तआला ने कि हम अली रज़ा को गलत नहीं कहेंगे। तो वो अली रज़ी अल्लाह तआला को ना गलत कहते थे ना मुआविया रज़ा को गलत कहते थे, वो कहते थे कि हम लड़ाई में शरीक नहीं होंगे। दोनों का कहना अपनी जगह पर सही था। अली रज़ा का खलीफा थे, उनका कहना यह था कि हमारा साथ देना चाहिए सबको, बिल्कुल सही बात है। मुआविया रज़ा का कहना यह था कि खून उस्मान का बदला चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दोनों की बात सही थी, वो दोनों में से किसी को गलत नहीं बोल रहे थे, दोनों की डिमांड अपनी जगह पर सही थी। तो दुश्मनों ने आके बीच में जो है ये तफरका करा दिया, तो दोनों अपनी जगह पर सही थे। लेकिन लड़ना, इस लड़ाई में साद रज़ा ने उनका किसी का, दोनों में से किसी का साथ नहीं दिया। तो जब ये कह रहे हैं कि इख्तलाफ का इजाज़त तो उनसे मना कर दिया, कहा कि हम उन पर सब नहीं करेंगे, हम उनको खताकार नहीं करार देंगे, हम उनको गलत देंगे। और मुआविया दूसरे मौके पर साद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की भी तारीफ की। यानी मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से भी अगर किसी के पास कोई बात आई तो उन्होंने साफ कहा। चुनांचे देखिए जो है बाकायदा लैस बिन साद की सनद से इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने नकल किया, और ये लैस बिन साद से आगे साद बिन वक्कास तक सनद बिल्कुल सही है। वो कहते हैं मा राई तो अहदन बादा उस्मान अक़दा बिहक़्क़ि मिन साहिबि हादल बाब, यानी मुआविया कहते हैं कि उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद दुरुस्त फैसला करने वाला मैंने मुआविया से बेहतर किसी को नहीं देखा। तो उन्होंने दोनों की फजलतें बयान की है, दोनों की तारीफ की है, उन्होंने किसी की मजम्मत नहीं की, ना अली रज़ा को बुरा कहा ना मुआविया रज़ा को बुरा कहा। लेकिन उनका अपना एक मौक़िफ़ था कि लड़ाई में किसी का साथ नहीं देना है। इसलिए मुआविया रज़ा ने सवाल किया कि आपने हमारा साथ क्यों नहीं दिया, उनसे इख्तिलाफ क्यों नहीं। ये है सब्बा का मतलब। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह जी। सुफियान भाई, आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। जी आप बताइए। आप सुनिए, आपकी बात बिल्कुल मैं तहम्मुल से सुना। अब जरा गुजारिश है मेरी, आप भी मेरे दलाइल, मेरी बात जरा तहम्मुल से सुनिए। तकरीर करने की इजाजत नहीं है आपको, तकरीर करने की इजाजत नहीं है आपको। दलाइल बताइए। नहीं, मुनाज़रा नहीं हो रहा है, मुनाज़रा नहीं। आपको मैंने जो बातें कही हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। मेरे 2 से 3 दलील है, बस मेरी वो सुन लिए। हाँ, उसका ही जवाब दे रहा हूँ मैं, उसका ही जवाब दे रहा हूँ। बस मेरे तहम्मुल से 2 मिनट बात सुनिए मेरी। आप बोल दीजिए ना जी भाई, कौन सी दलील है? पहली दलील क्या है आपकी? जी, मेरी दलील ये है कि आगे जब ये हदीस चल रही, अमरा मुआविया, ये हजरत मुआविया ने हुक्म दिया और साद रज़ियल्लाहु ने इनकार किया। हजरत मुआविया जब हुक्म दे रहे थे कि तुम्हें कौन सी चीज माने है कि तुम अबू तुराब पे सब नहीं कहते, यानी अबू तुराब को बुरा भला नहीं कहते, तो आप बोल रहे कि सबके माने यहाँ पर बार बार गाली नहीं होती। तो इससे आगे चलिए, एक 8 या 9 हदीस आगे चलिए, 6229 सही मुस्लिम 6229, इसमें सबका तर्जुमा हुआ है कि आले मरवान में से, आले उमैया में से एक शख्स को बुलाया गया, कि साद इब्न सादी को बुलाया गया और कहा गया कि तुम अबू तुराब पर लानत करो। गाली तो छोड़ दीजिए, लानत के अल्फाज है, लान अल्लाहु अबू तुराब, लान अल्लाहु अबू तुराब, ये अल्फाज मौजूद है 6229 सही मुस्लिम 6229। मैं आपकी बात तहम्मुल से सुना, आप भी जरा मेरी 2 मिनट बात तहम्मुल से सुनिए। ये 6229 ये लान अल्लाहु अबू तुराब, ये खोल के आप देख ले सकते हैं हदीस। और दूसरी बात, आपके बड़े इमाम इब्न तैमिया, ज़ैद भाई इनको रोको, दूसरी हदीस नहीं लाना बीच में। सुनिए, नहीं ज़ैद भाई इनको रोको, ये दूसरी हदीस ला रहे हैं, ये लाना, ये दूसरी हदीस ला रहे हैं।
اس پر ہم الگ سے بات کر سکتے ہیں. ابھی جو پہلے یہ ٹاپک کلوز ہو جائے, یہ سب کا جو مطلب میں نے بتایا ہے, اس کی کوئی دوسری تشریح آپ کے پاس ہے. میں نے جو تشریح بتائی ہے وہ میں نے پیش بھی کیا کہ صحیح مسلم کے, آپ تو ترجمہ دکھا رہے ہیں, یہ ترجمہ صحیح مسلم کے سب سے بڑے اشارے ہیں امام نووی رحمہ, ان کے الفاظ بھی میں نے کوٹ کر دیے. اور میں نے پورے جو اختلاف تھا, یعنی سب کے لیے جو دلیل موجود ہمارے پاس, وہ ان دونوں صحابہ میں اختلاف تھا, اس لیے ہم اس کو اسی پر محمول کریں گے. ہم نے محدثین سے بھی دکھا دیا, اس کا بیک گراؤنڈ بھی دکھا دیا. اب آپ اس کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ثبوت دے دیجئے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے گالی دی. آپ کوئی ثبوت دیجیے. اگر یہ ثبوت آپ نہیں دے سکتے تو آپ دوسری حدیث, وہ دوسری حدیث بتائیے, اس حدیث پر بات کیجیے. دوسری حدیث پر ہم بعد میں بات کریں گے. آپ اعتراف کر لیں کہ اس حدیث میں گالی دینے کی بات نہیں ہے, پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. چلیے, اس حدیث میں نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, اس حدیث میں نہیں ہے, میں آپ کو اسی حدیث کی بتا رہا ہوں. تو ٹھیک ہے, اس حدیث میں نہیں ہے جب حکم دیا تو 3 فضائل گنائے, 3 فضائل گنائے حضرت صاحب, 3 فضائل گنائے. ہاں جی, نہیں ہے, نہیں ہے, گالی دینے کی بات نہیں ہے نا, مانتے نا اس کو, نہیں ہے, لیکن جی میں مانتا ہوں آگے, لیکن کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. سنیے, تو اس حدیث میں آپ دوسری حدیث نقول بول رہے نا, تو اسی حدیث کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. 3 فضائل گنائے, لے کے آؤ, دوسری تیسری چوتھی لے کے آؤ, لیکن یہاں 3 فضائل گنائے. پچھلی اسٹریم میں جس حدیث پر آپ نے بات کی تھی, میں نے کہا لیکچر سن کے آؤ. آپ لیکچر سن کے آئے, اسی حدیث پہ بات رکھی. آپ نے شروع میں کہا کہ حکم دیا, وہ غلط ثابت کر دیا میں نے. پھر آپ نے کہا گالی دینے کی بات کی, وہ گالی دینے کی بات نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے پروف کر دیا گالی دینے. آپ ثبوت دیجیے, آپ کے پاس کیا ہے, کیا گالی دینے کا؟ 2 منٹ سن لیجیے, 2 منٹ سن لیجیے, خالی 2 منٹ. تو جب حکم دیا تو انکار کیا حضرت صاحب نے, 3 فضائل گنائے. غلط بات. حکم دینا یہ نہیں بولنا, یہ بات ہو چکی ہے, یہ آپ پروف نہیں کر چکے. حکم دیا, اس کو دہرانا نہیں. ٹھیک ہے, اس کو دہرا رہا ہوں میں, آگے بات. 3 فضائل گنائے, ہاں جی, سب کی بات کر رہا ہوں میں. 3 فضائل گنائے حضرت صاحب. پھر بولے کہ میں ابو تراب کو, علی کو کبھی برا بھلا نہیں کہہ سکتا. یہ 3 فضائل سنا ہے, وہ 3 فضائل آپ کو معلوم ہے بہتر طریقے سے, میرے سے زیادہ. تو پھر یہ حدیث اب آگے چل رہی, یہ حدیث یہاں پر رک گئی, اور اسی سیم 100% یہ سند کے ساتھ امام نسائی سنن نسائی کی اس حدیث میں کہا ہے کہ یہ 3 فضائل بیان کرنے کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کو برا بھلا نہیں بول سکتا. کہاں اس حدیث میں؟ کیا مطلب؟ شروع میں جو سب تھا اس کی تشریح میں کر چکا. آخر میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 فضائل بیان کیے. بالکل بیان کیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ 3 فضائل بیان کرنے کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کو برا بھلا نہیں کہتا, ان کو برا بھلا نہیں کہوں گا. یہ کہا برا نہیں کہوں گا, آگے بول رہا ہوں, سنیے تو صحیح. سنن نسائی کی حدیث, سنن نسائی, یہی 100% سیم. سنن نسائی پہ بعد میں آئیں گے, سنن نسائی پہ آئیں گے, ہم ساری حدیثوں پر آئیں گے, لیکن پہلے اس حدیث کے بارے میں کلیئر ہو جائے. اس میں گالی دینے کی بات نہیں ہے, نہ اوپر نہ نیچے. حدیث کے اسٹارٹ میں نہ ہے نہ اینڈنگ میں, کہیں بھی گالی دینے کی بات نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, یہ حدیث اسی سند کے ساتھ, جو مسلم والی سند ہے, اسی سند کے ساتھ آگے بڑھ رہی. ارے دوسری حدیث پر ہم آئیں گے, پہلے یہ تو مانو نا کہ اس حدیث میں گالی دینے کی بات نہیں ہے, نہ اسٹارٹ میں نہ اینڈ میں, کہیں گالی دینے کی بات نہیں ہے. آپ میری آگے بات سنیے, پھر آپ خود ہی فیصلہ کریے. نہیں, آپ دوسری حدیث پر میں آپ کو روک نہیں رہا ہوں, 2 نہیں 10 حدیث لاؤ, لیکن صحیح مسلم میں نہیں ہے گالی دینے کی بات. جو حدیث آپ نے کوٹ کیا اس میں اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے گالی دی ہو, یا گالی دینے کا حکم دیا ہو, یا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ مجھے حکم دیا گیا, میں گالی نہیں دیتا, برا بھلا نہیں دیتا. ایسی کوئی بات اس روایت میں نہیں ہے. اس کو تسلیم کیجئے, پھر دوسری حدیث لے کے آئیے. جی ٹھیک ہے, چلیے. آپ کو 2 کاؤنٹر کوشچن الاؤ کر رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ ٹائم چلا گیا, تو 2 کاؤنٹر کوشچن آپ کریے. میننگ فل کاؤنٹر کوشچن یہی ہے کہ آپ 10 حدیث لاؤ بھیا, وہ سب حدیث میں جانتا ہوں, لیکن اس حدیث کے بارے میں آپ کو ماننا پڑے گا. اس میں آپ کوئی گالی وغیرہ دینے کی بات ثابت نہیں کر سکتے. وہ آپ کے مطابق ہے, میرے مطابق میں جی بخاری مسلم سے گالی دینے کا ثبوت آپ نہیں دے سکے, تسلیم کیجئے, پھر ہم آگے جاتے ہیں. سنن نسائی کی ایک بات واضح ہے میرے خیال سے, سب ناظرین دیکھ سکتے ہیں. اب سفیان بھائی آپ کا کیا سوال ہے, بولیے. سیکنڈ سوال. سنن نسائی میں جب آگے ہم بڑھ رہے تو سنن نسائی میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا بول رہا, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا بول رہا کہ جب تک حضرت معاویہ مدینہ شریف میں رہے تب تک حضرت علی کا تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالا. یہ حدیث ہے, یہ حدیث سے واضح ثبوت مل رہا ہے کہ امام نبوی جو بولے کہ آپ ان کی ڈاکٹرن پوری طریقے سے
पूरी तरीके से पहले वो हो गई। एक मिनट सुनो, पहले आप इसको और जो- तस्लीम कर लीजिए, सही नहीं सुनो, और इस- पहले आप इसे तस्लीम कर लीजिए कि सही बुखारी और सही मुस्लिम, सुनन नसी ने आप हजार हदीस लाओ, आपको कौन मना कर रहा है, लेकिन पहले आप ये तस्लीम करो कि सही बुखारी या सही मुस्लिम में इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है कि मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अली रज़ा को गाली दी या गाली देने का हुक्म दिया, इसका कोई सबूत नहीं है बुखारी मुस्लिम में। जी जी ठीक है, आप आपके मुताबिक वो बात सही होगी। मैं जब आगे बढ़ रहा हूँ, आप मेरे को बार बार नहीं होगी, नहीं आगे बढ़ने दूंगा मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। आपको ये मानना पड़ेगा बुखारी मुस्लिम का नाम लेकर जो शोर मचाते हो ना, जो अली मिर्जा चिल्लाता है बुखारी मुस्लिम में, बुखारी मुस्लिम में वो तो शोहर ये आप उनको क्यों, मैं अभी तक इंजीनियर मिर्जा का नाम लिया, या आप ऐलान कीजिए कि सही बुखारी सही मुस्लिम में कोई सबूत नहीं है, आप इसका एतराफ कीजिए कि सही बुखारी टॉपिक आप चेंज क्यों कर रहे शेख? मैं अभी तक इंजीनियर का नाम लिया, इंजीनियर गया भाड़ में, मैं बात कर रहा हूँ हदीस की बात कर रहा हूँ। हदीस बताना, बस कोई परवाह नहीं है। आपने दावा किया था सही मुस्लिम की हदीस का, उसमें गाली देने का हुक्म दिया, दावा गाली देना, आगे बात क्लियर हो गई ना। सुन्नी निसाई में जब आगे ये सनद के साथ हदीस चल रही ना, बुखारी मुस्लिम में नहीं है, फिर हम बात करते हैं आगे। तनकीस, हजरत अली पे तनकीस करना क्या कोई अच्छी बात है? कहाँ तनकीस करने का हुक्म दिया भाई, किसने तनकीस किया? यही मैं तो बोलना चाह रहा हूँ। साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा, साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा बोल रहा है कि जितने दिन हजरत मुआविया यहाँ पर रहे मदीना शरीफ में, एक भी दिन उसके बाद से हजरत अली की तनकीस का जुमला नहीं निकाले। आप नहीं, दूसरी हदीस में हम बाद में बात करेंगे, इनको हटाओ। दूसरी हदीस है नहीं है ये दूसरी हदीस पर बाद में बात होगी, आज सिर्फ इसी सही मुस्लिम की हदीस पर बात होगी, दूसरी रवायत पर बाद में बात होगी। आप दूसरी रवायत लाना नहीं अभी, आप ये बात मैं दूसरी रवायत नहीं ला रहा हूँ, दूसरी रवायत लाना है बाद में लाओ, अभी आप दूसरी रवायत नहीं ला सकते। अभी सिर्फ आप मानो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में इसका कोई सबूत नहीं है कि गाली दिया या गाली देने का हुक्म दिया, बस। ये आपके बड़े इमाम इब्ने तैमिया का फतवा है, मेरा नहीं है। मिनहाजुस सुन्ना वो सब नहीं चलेगा। आप पहले इस बात का एतराफ करो कि सही मुस्लिम का जो आपने दावा किया पिछली स्ट्रीम में, इस स्ट्रीम में भी आपने वही दावा दोहराने की कोशिश की है कि सही मुस्लिम में कि अमीर मुआविया रज़ी ने हुक्म दिया गाली दो, वो बात नहीं है। ये तहरीफ बंद करिए, ये तहरीफ मत करिए, ये तहरीफ सिर्फ बुखारी मुस्लिम का नाम लेने से तहरीफ मैं मान लेता हूँ। सही मुस्लिम में आप दिखा दो कि गाली देने का हुक्म दिया है, गाली दिया, मैं मान लेता हूँ, उसके बाद हम दूसरी हदीस पे आएंगे। आप पहले या तो एतराफ कर लो कि सही मुस्लिम में नहीं है ऐसा कुछ। आपने जितनी बार कहा, मेरे ख्याल से वो सही मुस्लिम की हदीस से तो नहीं साबित कर पाए, जैसे कि सब लोग देख सकते हैं। अब क्या वो मुख्तसर में जो सवाल उन्होंने छोटा उठा लिया है, क्या उसका आप जवाब देना चाहते हैं अभी या अगली स्ट्रीम के लिए रखें? ठीक है, शेख किफायत, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है, चलो नाजरीन के लिए मैं एक बात बता दूं, इनसे मौजूदगी में ही बात होगी ना, वो दूसरी भी जो रिवायत पेश कर रहे हैं वो जब ले आएंगे वो खुद पेश करके रिवायत तब बात होना चाहिए उसकी। एक्चुअली शेख, क्योंकि वक्त भी काफी जा चुका है ऑलरेडी, और तो नहीं आई वो है मौजूद, लेकिन क्योंकि अभी टाइम लिमिटेशन भी है, चलिए तो अभी फिलहाल ये टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इतना सा अगर किसी को समझ में आ गया ना, सिर्फ इतना सा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में क्या फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना माहु अश्शिद्दउ अलल कुफ़ार, और जो उनके साथ है वो कुफ़ार पर सख्त है, लेकिन रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम करते हैं। और ये लोग जो साबित करना चाहते हैं कि ज़ैद भाई आपने कहा था 2 लाइन में वजाहत कर देता हूँ। ये जो सुनन नसी की बात पेश कर रहे हैं उसमें भी ऐसी कोई चीज नहीं है, ये अपने घर से बोल रहे हैं। इनको दोबारा ऐड होना तो ऐड करो इनको, और वो हदीस ला के खुद पेश करें, वो हदीस ला के खुद पेश करें कि उनके बेटे ने ये कहा या किसी ने कहा, ऐसी कोई बात सुनन नसी में नहीं है। ये अपने मन से, जैसे सही मुस्लिम का तर्जुमा गलत कर रहे थे, ऐसे उस रवायत का भी तर्जुमा गलत कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो तो लाके हदीस पेश करें, इनके मुंह से बोलने से काम नहीं चलेगा। हदीस पेश करें, फिर हम उस पर बात करेंगे। सही मुस्लिम पर हमने बात कर दी, बात खत्म होगी। अब अगर ये सुनन नसी की किसी रवायत पे बात करना चाहते हैं, सुनन नसी की रवायत पेश करें, कौन से अल्फाज हैं, फिर हम। अरे आप लोगों के अंदर तहम्मुल क्यों नहीं है शेख? मैं जब आपकी बात 10 मिनट खामोश सुन सकता हूँ, तो आप मेरी बात 2 मिनट क्यों नहीं सुन सकते? हम लोग वन बाय वन दलाइल का जायजा लेते हैं, कंप्लीट आंसर देने की कोशिश करते हैं। अब एक ही स्ट्रीम में सारे के सारे सवालों का जवाब आ जाए जरूरी नहीं है। अब चलिए, शेख ने कहा है कि जामिया तिरमिज़ी के सुनन नसाई का जो आप सवाल हवाला दे रहे हैं, आप बोल दीजिए कौन सी हदीस बताइए जी। सुनन नसाई में क़िसास अली एक चैप्टर बांधे, इमाम नसाई सुनन नसाई में एक क़िसास अली चैप्टर बांधे, उसमें हदीस है। ये चाहे तो उसमें मैं आपको डिस्प्ले करा, नहीं हदीस लाओ,
हाँ, ला रहा हूँ, एक स्क्रीन मिनट। ये शेयर कर सकते हैं ना, ये शेयर कर हाँ जी, सकते हैं। हाँ जी, हदीस लेके आओ, पहले हदीस लेगा फिर बात एक करते हैं। बोलो नंबर बोलो, बोलिए नंबर बोलिए। भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी, क्या बात है सुफियान भाई? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जरा चेक करो।